अनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर वरलक्ष्मी इंद्रकांति एक दूसरे टॉपिक के साथ आपके समक्ष हूँ। यूनिट वही है SECM 02 पेडागोजी ऑफ टीचिंग इंग्लिश ब्लॉक 3। यूनिट टाइटल अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। यूनिट 2 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड कम्युनिकेटिव लैंग्वेज। एंड टुडेज टॉपिक इज एक्लेक्टिक अप्रोच, जिसको कि हेट्रोजीनियस कहा जाता है। और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे कि हेट्रोजीनियस क्लासरूम्स हमेशा होते हैं। So this eclectic approach is very useful in Indian classroom teaching. Learning objective of this video is what is eclectic approach. Second is what is the definition of eclectic approach. Third one is what are the different methods and approaches in eclectic teaching. Fourth one is characteristics of eclectic approach. Fifth is merits and demerits of eclectic approach. And last one is the role of teachers in eclectic approach. So first we will be talking about what is eclectic approach. So basically eclectic model of curriculum design में आप ये देखोगे कि no single best way to design a curriculum. Basically what does it communicate? That since it is heterogeneous, so while using or while transacting the curriculum, there is no single way which you can say that this is the best method to be used in classroom teaching. Basically no single way, but it is basically a combination of various methods which is used in this type of classroom, then combines different elements. As it is the name eclectic or heterogeneous design itself indicates that it combines various different elements in classroom teaching. Then the last one is responsive to the need and interest of the students. Since we are keeping in mind the requirement of the heterogeneous group of the class, that is why it fulfills the needs of all the students. Since it fulfills the needs of all the students, a regular interest of the students is maintained in the classroom teaching. So basically, we will understand what is eclectic approach. So eclectic approach to language teaching has become common and fashionable in modern language teaching. So पिछले कुछ समय में ही जो है eclectic approach modern classroom teaching में use किया जाने लगा है. Basically it is a method of language education that combines various approaches and methodologies to teach language depending on the aims of the lessons and abilities of the learners. What does it mean? That ability of the learners is the prime concern of this approach. So जब learner centric approach को कक्षा में यूज किया जाता है, so आप देखोगे कि definitely वो छात्रों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होगा. So basically when we define eclectic approach, it is eclectic approach is a method of education that combines approaches and methodology to teach. So whatever approaches and methodologies we are using in classroom teaching, it is called as eclectic approach because no teacher uses only single method in classroom teaching. So we can say that eclectic method requires the skill of the teacher as well as each learner of the classroom is benefited by using this eclectic approach. The eclectic approaches emphasizes on the aims of the lesson and the abilities of learners too. So different teaching methods are borrowed and adapted to suit the requirement of the learners. इसका मतलब क्या है? टीचर कभी भी कोई एक सिंगल टीचिंग मेथड के माध्यम से नहीं पढ़ाती है, बल्कि ये कोशिश करती है कि वेरियस ऐसे मेथड्स क्लास में अपनाए जाएं जिससे कि छात्र बेहतर से बेहतर सीख सके. So basically while using this technique, the basic aim of teacher is learners benefit.
ऐसी कौन सी विधि का इस्तेमाल किया जाए जिसकी वजह से छात्र ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, वह जो है एक अच्छे टीचर का उद्देश्य होना चाहिए। और एथलेटिक अप्रोच जो है बहुत हद तक जो है टीचर की इस रिक्वायरमेंट को और छात्रों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता रखता है। सो आप इसी में आप देखोगे कि किस तरह से ये चित्र के माध्यम से हमको दिखाई देता है कि एथलेटिक अप्रोच बेसिकली है क्या। पहली क्या है कि ग्रुप कंपोजिशन। जब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, चूंकि हमने पहले ही कहा है कि हेट्रोजीनियस मतलब विभिन्न तरह के समाज के लोग एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ते हैं। सो ग्रुप कंपोजिशन जो है इसकी डायनेमिक्स थोड़ी सी जटिल होती है, क्योंकि समाज का हर वर्ग का छात्र जो है इसका हिस्सा होता है। देन शॉर्ट लेक्चर, बेसिकली एथलेटिक लेक्चर में शॉर्ट लेक्चर, जैसा कि हमारे अपने लेक्चर्स भी 20-25 या मैक्सिमम 30 मिनट्स के जो हैं डिजाइन किए गए हैं। देन आता है ग्रुप प्रोजेक्ट। क्लास में छात्रों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट और कोऑपरेशन को डेवलप करने के लिए ज्यादातर टीचर इस मेथड में कोशिश करती है कि बच्चों को ग्रुप प्रोजेक्ट दिया जाए, जिससे कि बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी भी आती है, टॉलरेंस भी आता है, एपिथी भी आती है, और साथ साथ बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ काम करने की क्षमता का विकास करते हैं। और सबसे अंत में आता है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू का मतलब ही होता है कि जब छात्र ग्रुप में काम करते हैं तो एक दूसरे की काम की क्षमता को वो स्वयं आंकते हैं, तो इससे बच्चों में एक पीयर रिव्यू की भावना का विकास होता है। और चूंकि छात्र अपने ही हम उम्र छात्रों को उनकी कमी और खूबियां बताता है, तो बच्चे उसको बहुत नेगेटिवली लेते हैं। और ये पीयर ग्रुप रिव्यू जो है छात्रों के उस स्मॉल ग्रुप को जिसमें कि उन्होंने ग्रुप प्रोजेक्ट किया है, उसको अपनी काबिलियत को और बढ़ाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है व्हाट इज द एथलेटिक अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग मेथड। सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इंग्लिश, we have to see how it can be used in language teaching. So what are the basically all the highlights of this method? First, the eclectic approach is a teaching style used in teaching a second or a foreign language. Since basically the topic is we are talking about bilingual approach and communicative approach, it emphasizes more on the classroom teaching where bilingual method is used. So basically athletic approach is also equally important in teaching style where teaching is basically in second language or a foreign language. Then comes this approach combines the principles of various methods of teaching. So athletic approach में किसी एक method पर stress नहीं किया जाता है, rather it is a combination of various methods, and the basic objective of any teacher is basically is to give more and more to the learners. So again इस बात पर हमको ध्यान देना होगा कि एथलेटिक अप्रोच बेसिकली लर्नर सेंट्रिक होती है, इसलिए छात्रों का तेजी से इस विधि से पढ़ने से विकास होता है। दिस मेथड कोऑपरेट्स ways of teaching a language depending on the lesson objective. So पाठ के विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार इस मेथड में वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ methodology is being used while using this athletic method. Then it also focuses on individual difference of the students. जैसा कि मैंने पहले कहा, क्लासरूम टीचिंग में चूंकि टीचर विभिन्न तरह की मेथोडोलॉजी को यूज करता है, तो उसका बेसिक उद्देश्य ही यही होता है कि क्लास में आप देखिएगा कि हेट्रोजीनियस जब ग्रुप होता है, हर छात्र की लर्निंग एबिलिटीज डिफरेंट होती हैं। सो ऐसे वक्त आप देखोगे कि जब एथलेटिक मेथड को कक्षा में प्रयोग किया जाता है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस वाले अलग अलग या विभिन्न क्षमता वाले छात्रों की जो कैपेबिलिटीज होती हैं, उनको भी सीखने में इस विधि के द्वारा बहुत अधिक मदद मिलती है। फिर आता है कि द अप्रोच कंबाइंस वेरियस टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स डिपेंडिंग ऑन लर्नर्स नीड्स एंड लेसन ऑब्जेक्टिव्स। सो छात्रों की आवश्यकता और लेसन के जो उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव निर्धारित किए जाते हैं, उनके अनुसार इस विधि में परिवर्तन भी किया जा सकता है। देन नेक्स्ट कम्स दी इट अलाउज टीचर्स टू सेलेक्ट द बेस्ट टेक्निक्स फ्रॉम डिफरेंट मेथड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। सो विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न उपलब्ध मेथोडोलॉजी में से टीचर ये डिसाइड करता है कि क्लासरूम की आवश्यकता कौन सी है और उसके हिसाब से वह बेस्ट मेथड को यूज करने की कोशिश करता है।
And next one is the method combines various approaches and methodologies, giving teachers flexibility and adaptability. So teacher जब कई मेथडोलॉजी को एक साथ कक्षा में यूज करता है, so definitely it gives lot of flexibility and adaptability on the teacher's part. So basically आप देखोगे कि टीचिंग मेथड इज नॉट सेट इन द स्टोन्स, मतलब ऐसा नहीं है कि टीचिंग मेथड का एक कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है. अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर्स, टीचर जो है किसी भी विधि का कक्षा में प्रयोग कर सकता है. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज द एनलाइटनिंग अप्रोच. एनलाइटनिंग का मतलब क्या है? बेसिकली आपके अंदर एक ऐसी ज्वाला अपने आप विकसित हो जाती है, आपको अंदर से, जैसे एनलाइटमेंट अवेकनिंग की बात कहते हैं, कि छात्र स्वयं इस बात को समझने लगता है कि सेल्फ ग्रोथ के लिए उसको अपने आप को जो है ढालना पड़ेगा, जिससे वह ज्यादा से ज्यादा वो सीख सके. एंड इफ अ टीचर हैज अ चॉइस एंड टेंस टू थिंक बट इट डिपेंड्स ऑन, देन यू आर यूजिंग द एथलेटिक एनलाइटनिंग अप्रोच इन द क्लास. सो एथलेटिक अप्रोच को ऐसा भी कहा गया है कि एनलाइटनिंग अप्रोच के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि छात्रों में ये विशिष्ट क्षमता का विकास करने की क्षमता इसमें होती है. सो बेसिकली आप देखोगे कि ज्यादातर टीचर्स जो होते हैं वो इस कक्षा क्लासरूम टीचिंग में इसका प्रयोग करते हैं. विभिन्न तरह की मेथड्स को फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार लगातार इस्तेमाल करते हैं. और खास तौर से आप देखोगे कि जब कक्षा में व्हेन दे क्रिएट वैरायटी इन द क्लासरूम, ऑटोमेटिकली द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज ऑलवेज देयर. तो छात्रों की रुचि हमेशा बनी रहती है, क्योंकि एक ही तरह की अप्रोच या एक ही तरह की मेथडोलॉजी लगातार यदि कक्षा में टीचर यूज करेगा तो छात्र जो है बोर होने लगते हैं. और एथलेटिक अप्रोच की खासियत यही है, चूंकि कक्षा में टीचर विभिन्न तरह की मेथडोलॉजी को यूज करता है, तो ये छात्रों के लिए बहुत रुचिकर होता है. इसलिए जो है छात्र बहुत ध्यानपूर्वक शिक्षक की बात को सुनते हैं. देन कैसे ये डिसाइड किया जाएगा कि व्हाट इज द लेवल ऑफ स्टूडेंट, छात्र किस विधि के द्वारा ज्यादा सीखने की क्षमता का विकास करते हैं? ये एथलेटिक अप्रोच ही है जो हमको या शिक्षक को इस बात को आंकने में मदद करती है कि छात्र ऐसी कौन सी विधि है, ऐसी कौन सी मेथडोलॉजी है जिसके द्वारा वह बहुत अच्छे से समझ सकता है. तो जब कक्षा में लगातार टीचर विभिन्न मेथड्स को यूज करता रहता है और वो स्वयं आकलन करता रहता है कि कौन सी मेथडोलॉजी बेस्ट सूटेड है छात्रों के लिए, वह उसी मेथडोलॉजी का प्रयोग कक्षा में बार बार करता है, क्योंकि उसने ये ऑब्जर्व कर लिया है कि एक पर्टिकुलर अप्रोच या मेथड से पढ़ाने से छात्रों की जो लर्निंग है या उनका एनलाइटमेंट है वो काफी तेजी से हुआ है. और ये क्यों होता है, जैसा कि बार बार इस बात पर स्ट्रेस किया जा रहा है, इसमें चूंकि वेरियस टेक्निक्स को कंबाइन किया जाता है, इस वजह से वो विभिन्न छात्रों की नीड्स और लेसन के ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा ध्यान में रखा जाता है. और इसके साथ साथ टीचर में भी एक क्षमता का विकास हो जाता है कि वो सबसे बेस्ट टेक्निक कैसे कक्षा में इस्तेमाल करे, जिससे कि उसके विभिन्न उद्देश्यों की या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की पूर्ति हो जाए. सो इसीलिए आप देखोगे कि जब टीचर विभिन्न तरह की मेथडोलॉजी को कक्षा में यूज करता है तो उसके पास भी एक ऐसी स्किल आ जाती है जिससे कि वो बहुत फ्लेक्सिबल और एडॉप्टेबल भी हो जाता है, और उसको पता ही नहीं लगता है कि एक विधि से वह दूसरी विधि और दूसरी से तीसरी विधि में वह किस तरह से स्विच होता चला गया. तो इसी वजह से आप देखोगे कि जब विभिन्न विधियों का कक्षा में उपयोग किया जाता है तो स्टूडेंट्स की लर्निंग जो है बहुत अधिक होती है, और उनको वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस जब मिलते हैं तो उनका एक्साइटमेंट कक्षा में बना रहता है, उनका ध्यान हमेशा कक्षा में बना रहता है और इधर उधर उनका ध्यान नहीं भटकता है. इसलिए जो है एक्लेक्टिक अप्रोच छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होती है. सो आप देखोगे कि जब हम एक्लेक्टिक अप्रोच को कक्षा में यूज करते हैं, सो व्हाट आर द डिफरेंट टीचिंग मेथड्स दैट आर adopted to ease learning and bringing variety and excitement breaks in the class. So कहने का मतलब क्या है, जब 35 या 40 मिनट लगातार टीचर कक्षा में पढ़ाता रहता है तो छात्र उससे बोर होने लगते हैं. इसीलिए वैरायटी ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी का कक्षा में उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है. जैसा कि उदाहरण के तौर पर आप देखोगे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, टीचर स्टूडेंट्स लर्न ग्रामेटिकल रूल्स. सो कक्षा में
उस रुचि को बनाए रखने के लिए, छात्र का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए टीचर जो है उनको ग्रामर ट्रांसलेशन का एक एक्सरसाइज दे सकती है और उसी के माध्यम से ग्रामर के विभिन्न, व्याकरण के विभिन्न जो नियम या रूल्स होते हैं वह छात्रों को समझा सकती है। एंड बेसिकली इट इज़ अ डायरेक्ट मेथड। और टीचर जो है स्टूडेंट को उनकी नेटिव लैंग्वेज में भी जाकर समझा सकती है, जो उनकी लोकल लैंग्वेज होती है उसमें भी समझा सकती है। इसलिए छात्रों को सीखने में बहुत अधिक आसानी होती है। और बेसिकली आप देखोगे द मेन लैंग्वेज इज यूज्ड टू टीच द लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। कहने का मतलब क्या है, किसी भी भाषा के विकास के लिए आप सभी जानते होंगे कि ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको कि सबको आना चाहिए। बोलने से पहले आपको सुनना आना चाहिए। सो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्टेप्स हैं जिसके माध्यम से हम भाषा सीखते हैं। जैसे मातृभाषा का ही आप उदाहरण लीजिए, आपको बचपन में आपको आपकी भाषा के ग्रामर या सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं पता है, उसके बावजूद भी आप घर में माता पिता द्वारा जो मातृभाषा है वो बोली जाती है वो सुन सुनकर सीख जाते हैं। तो पहले सुना, फिर आपने बोला, फिर जब आप स्कूल जाने लगे तो उसको पढ़ना शुरू किया और पढ़ने के साथ साथ फिर धीरे धीरे आप लिखना भी सीख जाते हैं। सो ये खाली इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज या किसी मदर टंग के लिए नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में परफेक्शन प्राप्त करने के लिए आप देखोगे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, दीज आर दी 4 very important skills for learning any language. Then in structural situation approach, the teacher teaches language through careful selection, gradation and situational vocabulary. Situational vocabulary यानी मान लीजिए एक पैराग्राफ में 10 कठिन शब्द आए हैं, सो उस पैराग्राफ में आने वाले कठिन शब्दों का उत्तर या उनका मीनिंग और उसका ट्रांसलेशन तुरंत कक्षा में छात्रों को वहीं पर समझा दिया जाता है और साथ साथ कठिन शब्दों के अर्थ भी लिखा दिए जाते हैं जिससे कि छात्रों को उस पैराग्राफ को समझने में आसानी हो। फिर आता है कि जैसे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बिलीव दैट मेमोरी इज एनहांस थ्रू एसोसिएशन विथ फिजिकल रिस्पॉन्स। तो उसमें ये कहा गया है कि मेमोरी को यदि आपको एनहांस करना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा कि जब टीचर बोल रहा है तो तुरंत छात्रों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए। यदि वे कक्षा में सुषुप्त से बैठे रहें, इनएक्टिव बैठे रहेंगे तो वो जल्दी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए उनको तुरंत फिजिकल रिस्पॉन्स देना बहुत आवश्यक होता है। और यदि छात्र कक्षा में अलर्ट है और फिजिकल रिस्पॉन्स इमीडिएटली देता है तो डेफिनेटली जो है उसकी लर्निंग एबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। दूसरी बात हमको ये भी देखना है कि कई बार लैंग्वेज टीचिंग में खास तौर से साइलेंस और जेस्चर्स दोनों के माध्यम से जो है कक्षा में टीचर पढ़ाने की कोशिश करता है। तो उसमें ये देखा गया है कि मान लीजिए कक्षा में बहुत अधिक शोर हो रहा है और टीचर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को कक्षा में डिस्कस कर रही है और बोलते बोलते अचानक यदि टीचर साइलेंस मोड में आ जाती है तो छात्र एकदम अलर्ट हो जाता है कि इतनी देर से कक्षा में टीचर बोल रही थी, अचानक टीचर शांत क्यों हो गई। तो तुरंत उनको ध्यान आता है कि हम आपस में बात कर रहे थे इसलिए टीचर साइलेंट हो गई। कई बार बॉडी के जेस्चर से भी टीचर ये बता देती है कि कक्षा में बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है और ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है या तो हम कक्षा में नहीं पढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो हमेशा आपको बोलकर अपनी बात को कहने की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपने जेस्चर और बॉडी लैंग्वेज के थ्रू भी छात्रों को ये समझा सकते हैं कि वो क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे छोटा बच्चा जो बोल नहीं सकता है वह इशारों से ही अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है। फिर इन ऑडियोलिंगुअल या ऑडियो विजुअल टीचिंग स्टाइल्स स्टूडेंट्स आर टॉट न्यू वर्ड्स, grammar is directly taught in the target language without using the native language. So कहने का मतलब क्या है कि यदि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी के ग्रामर को, हिंदी के व्याकरण को हिंदी के वाक्यों में ही प्रयोग करके बताएं। और हम यदि इंग्लिश की बात कर रहे हैं सो इंग्लिश के जो ग्रामर के रूल्स होते हैं टीचर के लिए जरूरी हो जाएगा कि वह इंग्लिश में ही सेंटेंस बनाकर उसके नियम को समझाने की कोशिश करे, ना कि वहाँ की नेटिव लैंग्वेज को।
देन ऑडियोलिंगुअल मेथड डज नॉट फोकस ऑन वोकैबुलरी बट ऑन ग्रामर प्रैक्टिस. सो जब हम ऑडियोलिंगुअल की बात करते हैं, यानी बोल के दूसरी भाषा को सिखाने की जब हम बात करते हैं, तो हम वोकैबुलरी पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, नए शब्दों को सीखने पर ज़्यादा देते हैं, और इसके साथ-साथ जो है हम ग्रामर की प्रैक्टिस करने पर भी ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं. ग्रामर की प्रैक्टिस का मतलब क्या है? एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना जो है छात्र सीखने की क्षमता का विकास कर लेता है. देन कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच लेज एम्फेसिस ऑन द ओरल मेथड ऑफ टीचिंग. सो कम्युनिकेटिव, जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे हैं, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में ओरल मेथड ऑफ टीचिंग की बात करते हैं. हम अगली कक्षा में इस बारे में ही बात करेंगे कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज जो होती है छात्रों को ओरली अपनी बात कहने की क्षमता का विकास करती है. सो बेसिकली आप देखोगे कि जब ओरल बात करने के लिए कहा जाएगा, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश में, जब छात्र कक्षा में बात करना शुरू करते हैं, सो डेफिनेटली आप देखोगे कि उनकी कॉम्पिटेंस जो है अपनी बात को उसी भाषा में कहने की क्षमता का विकास उनमें होने लगता है. तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑटोमेटिकली डेवलप उनमें हो जाती है. सो इस तरह से आप देखोगे कि जब हम ग्रामर देखते हैं, बेसिकली आप देखेंगे तो बाइलिंगुअल मेथड हो चाहे एक्लेक्टिक मेथड हो या आगे आने वाली जितनी भी हम मेथडोलॉजी के बारे में बात करेंगे, वो उनमें कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट का पार्टीशन नहीं है, क्योंकि ये सभी मेथडोलॉजी लगातार इंटरमिंगल होके कक्षा में टीचर इन सब का एक साथ प्रयोग करता है. और हम हाईलाइट करके नहीं बता सकते हैं कि अभी हम बाइलिंगुअल यूज कर रहे थे, अब एक्लेक्टिक यूज कर रहे हैं, या हम इसके बाद कम्युनिकेटिव यूज करेंगे, या हम कोई और मेथडोलॉजी को यूज करने वाले हैं. ऐसा एक डिस्टिंक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली टीचर वन मेथड से दूसरी मेथड पर बहुत स्मूथली स्विच ओवर होती चली जाती है. सो बेसिकली एक्लेक्टिक अप्रोच की जब हम बात करते हैं, सो उसमें लैंग्वेज लर्निंग के लिए इसका सबसे अच्छा उपयोग हो सकता है. सो जैसे ग्रामेटिकल फिनोमेना में इसका यूज होता है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना में होता है, इंडक्टिव अप्रोच में होता है, और डिडक्टिव अप्रोच. तो कहने का मतलब क्या है? ग्रामर सीखना है या छात्रों में जब भाषा से संबंधित तेजी से विकास होना लगता है, तो साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से उनको एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है. सोशल फिनोमेना, जब आपको उस समाज की भाषा आने लगती है, सो आप लोगों के साथ अच्छे से इंटरैक्ट कर सकते हैं. और इंडक्टिव अप्रोच का भी यूज किया जाता है, डिडक्टिव को भी. मेरे ख्याल से पिछली कक्षाओं में इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में जब मैगजीम्स ऑफ टीचिंग होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा नोन टू अननोन और अननोन टू नोन की जो भाषा होती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स टू सिंपल वाली जो भाषा होती है, वो आपको किस तरह से समझाई जाती है, ये बार बार क्लास में स्ट्रेस किया जाता है. सो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्लेक्टिक अप्रोच. इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं. पहले तो ये इनोवेटिव है. इनोवेटिव क्यों है? क्योंकि इसमें विभिन्न मेथडोलॉजी को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है. एंजॉयबल क्यों होती है? छात्र जो है बोर नहीं होता, लगातार जो है एक ही मेथड से टीचर नहीं पढ़ाती है, तो इस वजह से जब वो एंजॉयबल होगी तो छात्रों की दे लर्निंग पार्टिसिपेशन उनका ज्यादा होगा. और इसके साथ साथ आप देखोगे इट एनहांसेस द लर्नर्स पार्टिसिपेशन एज वेल एज interaction also. Then makes English teaching a practical and enables teachers to attain objectives. So चूंकि eclectic माध्यम से जब टीचर पढ़ाती है, सो वो इंग्लिश पढ़ाना उसके लिए बहुत आसान होता है. एंड वॉट एवर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर इज, it becomes very easy for the teacher to achieve those objectives. Then it includes multiple tasks and connects ideas presented in the learning of the लैंग्वेज. जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, चूंकि टीचर मल्टीपल मेथड्स को यूज करती है, तो मल्टीपल टास्किंग भी उसको आ जाती है. एंड वेरियस आइडियाज आर कनेक्टेड थ्रू दिस एंड दे आर प्रेजेंटेड इन अ वेरी सिस्टमेटिक मैनर विच हेल्प्स टू लर्न अ लैंग्वेज इन अ बेटर सेंस. देन गिव्स इक्वल इंपॉर्टेंस टू द फोर स्किल, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है. जो फोर स्किल्स हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. तो जिसकी वजह से जब हम इक्वल इंपॉर्टेंस इन चारों को देते हैं, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि इससे काफी समय की बचत भी होने लगती है. अब इसके बाद देखते हैं कि मेरिट्स में क्या क्या बातें हैं. फ्रीडम टू टीचर्स टू चूज व्हाट इज अप्रोप्रिएट इन देयर ओन डायनामिक टीचिंग कॉन्टेक्स्ट. इसका मतलब क्या है? टीचर के पास फ्रीडम होती है कि वह किस मेथड का कक्षा में प्रयोग करे.
ईजी फॉर द लर्नर्स, क्योंकि इसमें जो है छात्र अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या अपनी मदर टंग में सीखने की क्षमता का विकास करते हैं, तो छात्र कक्षा में जो है बहुत कंफर्टेबल रहता है। देन ब्लेंड्स लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। सो इन चारों का मिश्रण होता है कक्षा में। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सुनाएंगे ही सुनाएंगे, नहीं, छात्रों को सुनने का, बोलने का, लिखने का और पढ़ने का इक्वल जो है उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जिससे लैंग्वेज सीखने में उनको बहुत आसानी हो जाती है। देन helps teachers to teach effectively by drawing strength of various methods and avoiding their weaknesses। चूंकि टीचर कई मेथोडोलॉजी को एक साथ जॉइंट रूप में यूज करता है, सो उन मेथड्स की कमियों को धीरे धीरे वो पीछे छोड़ता चला जाता है, और हर मेथड की जो एडवांटेजेस होते हैं उन्हीं को वो क्लासरूम टीचिंग में इन्वॉल्व करता है। इसी वजह से जो है टीचिंग बहुत आसान हो जाती है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बहुत आसानी से टीचर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ये रियलिस्टिक सिचुएशन में ये क्लासरूम टीचिंग हमेशा होती है। और जब छात्र एंजॉय करता है और पार्टिसिपेट करता है, तो आप क्या करोगे कि क्लास में आप देखोगे देयर इज अ वेरी गुड लर्निंग एनवायरनमेंट इन विच स्टूडेंट एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप इज वेरी मच इम्प्रूव। टीचर और टॉट के बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं, और स्टूडेंट के बीच में, जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि पीयर ग्रुप लर्निंग होती है, तो छात्रों की रिलेशनशिप भी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। देन टीचिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज मेड इजी बाय क्रिएटिंग रियलिस्टिक सिचुएशन इन द क्लासरूम। सो हम कोई फैंटेसी की बात नहीं करते हैं, रियलिस्टिक सिचुएशन टीचर कक्षा में देती है, और उसके अकॉर्डिंगली ही जो है कक्षा में क्लासरूम टीचिंग होती है। एंड द पोटेंशियल ऑफ कीपिंग लैंग्वेज टीचिंग ओपन टू ऑल्टरनेटिव्स। सो ऑल्टरनेटिव्स का मतलब क्या है? हम एक स्टैंडर्ड पैटर्न के अंतर्गत किसी भी विषय को नहीं पढ़ाते हैं। वी आर ओपन टू लर्न थ्रू एनी मेथोडोलॉजी, सो देन इट बिकम्स वेरी रियलिस्टिक। दैट इज व्हाई इट रिकमेंड्स दैट एनी मेथड और अप्रोच कैन बी यूज्ड बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। सो कक्षा में जो छात्र बैठे हैं उनकी मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, एबिलिटी, मानसिक एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी और उनकी फिजिकल एबिलिटी कितनी है, उसके अनुसार जो है टीचर के पास पूरी फ्रीडम होती है कि वह किसी भी तरह की मेथोडोलॉजी को कक्षा में यूज कर सके। तो जिसकी कुछ मेरिट्स होती हैं तो डेफिनेटली उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। सबसे पहली बात है कि ये कहा है कि टीचर जो खास तौर से होते हैं वो जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस में इसको कई बार उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार टीचर को सिलेक्शन ऑफ द एप्रोप्रिएट मेथड इट बिकम्स अ वेरी चैलेंज फॉर दी टीचर। टीचर कई बार समझ ही नहीं पाता है कि कुछ कठिन विषयों को समझाने के लिए वह कौन सी मेथोडोलॉजी का उपयोग करे। सो कई बार यदि टीचर बहुत एक्सपर्ट नहीं है और उसको प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं मिली है, तो कई बार टीचर के पास लाचारी हो जाती है कि वो कठिन विषयों को पढ़ाने के लिए इन सब मेथड में से कौन सी मेथड का उपयोग करें। और कई बार क्या होता है कि ऐसा भी कहा जाता है जब बहुत सारी मेथड्स एक साथ कक्षा में यूज कर ली जाती हैं तो एक खिचड़ी से बन जाती है। और कई बार ऐसा हो सकता है कि कई सारी मेथड्स यदि खास तौर से टीचर प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं है तो वह अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जो है कई बार ऐसा होता है मिक्स ऑफ ऑल मेथड्स मे बी इट विल राइज और रिजल्ट इनटू काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। और innovative techniques is used occasionally and mixed it with other, the effect of the new is diluted। So कहने का मतलब क्या है, नई और पुरानी टेक्निक जब एक साथ मिलकर यूज हो जाती है, सो कई बार जो इंडिविजुअली वो मेथड को यूज करते हैं तो मे बी इट विल गिव बेटर रिजल्ट, बट व्हेन इट कंबाइंड विथ अनदर मेथड मे बी द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्निक और मेथड विल नॉट बी मैक्सिमाइज। देन नॉट यूजफुल फॉर स्लो लर्नर्स। तो कक्षा में चूंकि हेट्रोजीनियस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो कक्षा में हर तरह के लर्नर्स उपलब्ध होते हैं, तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि स्लो लर्नर्स के लिए ये एक्लेक्टिव मेथड उतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि ओनली द ट्रेन्ड टीचर्स कैन यूज दिस मेथडोलॉजी इन द क्लासरूम, इसलिए जो है इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म किया जाता है। सो डिसएडवांटेज के रूप में कहते हैं कि टीचर शुड बी वेल क्वालिफाइड, देन they should have the theoretical knowledge of various languages and the theories
which they are using in the classroom. Then they should have the proper training how to present and carry the various methodology in the classroom. फिर इसके बाद आप देखोगे कि professional, if teachers are not having that professional practice, they will not be able to use this methods. And as I said earlier, selection of appropriate method becomes a very challenging situation for the teacher. Then sometimes it becomes very unsafe for the teachers who use this methodology in the classroom. Then mix of methods and approaches may result in all kinds of conflicts. और कई बार क्या होता है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को क्लास में यूज करने की वजह से आप देखोगे कि जो है क्लास में खिचड़ी सी बन जाती है, एंड द बेसिक एम ऑफ द लेसन इज नॉट कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स. और जैसा कि पहले कहा है कि स्लो लर्नर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं हो सकती है, इसलिए हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कब और कैसे हमें इसे यूज करना है क्लास में. सो इस चीज का ध्यान हमको रखना पड़ेगा. इसके साथ साथ आप देखोगे कि टीचर्स रोल, हम टेक्नोलॉजिकली कितना भी डेवलप क्यों ना हो जाए, बेसिकली हमको ये देखना होगा कि टीचर का रोल हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रहा है. सो टीचर को जैसे कहा जाता है कि वो रिसोर्स डेवलपर है, प्लानर है, एक्सेसर है, फैसिलिटेटर है, रोल मॉडल है. सो आप देखोगे कि टीचर और टॉट के बीच में जो है एक बहुत क्लोज कनेक्शन होता है. इस वजह से आप देखोगे कि छात्रों और टीचर के बीच में जितनी अधिक अंडरस्टैंडिंग होगी, आप ये देखोगे कि छात्र उतनी ही अच्छी तरह से कंटेंट को समझने की क्षमता का विकास कर सकता है. सो इसलिए कहा गया है कि रोल ऑफ टीचर इन एथलेटिक अप्रोच ऑफ टीचिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट. जैसे टीचर क्या है, क्या क्या गुण उसकी वजह से हम में विकसित हो सकते हैं. सो जब टीचर को इस एथलेटिक अप्रोच को यूज करना है तो उसमें क्या गुण होना चाहिए. पहली बात, इमेजिनेटिव होना चाहिए. दूसरा, उसे एनर्जेटिक होना चाहिए. और तीसरी बात यह है, विलिंग टू एक्सपेरिमेंट होना चाहिए. और इसके साथ साथ जो है टीचर को जो है पैशनेट अबाउट लर्निंग होना चाहिए. फिर क्लासरूम में वो केयरिंग होना चाहिए, डेडिकेटेड होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए. तो जब तक टीचर में ये सब गुण नहीं होंगे तब तक आप देखोगे कि क्लासरूम में इसको उपयोग करना बहुत अधिक टीचर के लिए कठिन हो जाता है. इसलिए कहा जाता है कि टीचर बेसिकली एक कोच या फैसिलिटेटर के रूप में होता है. उसी को जो चित्र में आपको बताया गया है उसको एक तरह से समराइज करके पॉइंट के रूप में आपके समक्ष रखा जा रहा है. देन एम्फसाइजेस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स दैट शिफ्ट्स द रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेटर स्टूडेंट्स लर्निंग. देन प्राइमरी गोल ऑफ अ टीचर इन इंटरैक्शन विद द स्टूडेंट्स आर फैसिलिटेशन ऑफ द स्टूडेंट्स बाय सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स. छात्रों की समस्याओं का समाधान करने की क्षमता का टीचर में होना चाहिए. देन प्रमोटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ इंक्वायरी. छात्र यदि कक्षा में कुछ पूछना चाहता है तो टीचर उसकी समस्या का समाधान करे. देन कोलैबोरेटिंग थ्रू दी मॉडलिंग ऑफ क्वेश्चनिंग एंड लिसनिंग स्किल्स. कोलैबोरेट, वेरियस स्किल्स आर कोलैबोरेटेड while teaching in the classroom. Then active learning gives the teacher to perform functions of coach, listener and advocate. So एक अच्छा टीचर वही होगा जो कि एक अच्छा कोच है, एक अच्छा लिसनर है और छात्रों की समस्या का समाधान करने की उसमें क्षमता है. तभी आप देखेंगे कि एक अच्छा टीचर वही बन सकता है. इसलिए टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर या कोच के रूप में देखा जाता है. सो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक जो है समाप्त होता है और इसमें हम देखेंगे कि आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया. सो पहले हमने फर्स्ट टॉपिक में तो बाइलिंगुअल एजुकेशन के बारे में बात की थी और जब हमने सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं सो हमने इसमें बात की थी कि एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होती है. एक्लेक्टिक अप्रोच कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, टीचर्स की उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, टीचर जितना अधिक सक्षम होगा, जितना अधिक एनर्जेटिक होगा, उतना ही वह जो है इसको कक्षा में आसानी से प्रयोग में ला सकता है. और इसके साथ साथ हमने देखा कि व्हाट इज एक्लेक्टिक अप्रोच, उसकी डेफिनेशन क्या है हमने देखा. फिर व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स एंड अप्रोचेस इन एक्लेक्टिक मेथड. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्लेक्टिक अप्रोच.
देन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, और सबसे आखिरी में हमने रोल ऑफ अ टीचर के बारे में डिस्कस किया था। और हम जब नेक्स्ट टॉपिक में इन तीनों यूनिट्स को मिलाकर कुछ क्वेश्चंस देंगे जो आपके एक्सरसाइज के लिए या फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी के लिए बहुत अधिक हेल्पफुल होंगे। नमस्कार, थैंक यू।